Hi, I'm Anand Panchman and today we're going to deal with the last topic of this chapter. Fine. It was recorded, right? Yeah, that's good. So we're dealing with the last topic of the chapter. I'm so excited to teach this topic. You know, it's an amazing topic. You know what happens is time please. सोच इधर में. शुगर ही मैं. हंसे चल. जरा सर मैं सोची जा रहा हूँ. लास्ट टॉपिक ये and we are going to deal with Doppler effect. साला अगर मैं चिल्लाता दौड़ने लगे ना तो I am the source. बराबर करके अगर दौड़ने लगे मैं फाइन यहाँ पे हो रहा है तो source is stationary. Fine, source is stationary. और अगर करके कुत्ता पीछे है करके दौड़ रहा है मैं बराबर तो source is in motion. नहीं हुआ था तो मुझे लूज मोशन. ठीक है फाइन चल. आई नो द लास्ट. लेट्स गेट सिंसियर. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डॉपलर इफेक्ट वेयर द सोर्स एंड द लिसनर both are having some relative motion. Source of the sound wave and the listener both are having some relative motion, then the frequency which is experienced by the listener is different than the original frequency. This is called as Doppler's effect. Fine. Okay. क्या होता है अगर if you have a tuning fork with you बराबर है what will happen अगर तुझे करके ऐसा लगता है तो दोनों साइड सेम वाइब्रेशन जाएंगे. फाइन. ट्यूनिंग फॉर्क करके तू ऐसा मूव करता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, कंडेंसेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, रेफ्रेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? लैम्बडा चेंज हो जाएगा. कैन यू रिलेट दैट? पता चल रहा है अगर टिंग करके ऐसा रख रहा है दोनों साइड सेम जा रहा है. टिंग करके अगर ये ऐसा मूव कर रहा है यहाँ पे कंडेंसेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे रेफ्रेक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे लैम्बडा बढ़ेगा, यहाँ पे लैम्बडा कम होगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? पता चल रहा है अगर वो ऐसा वैसे भी वो ऐसे जा रहा है और मैं इसको ऐसे धक्का मार रहा हूं तो यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन. ओके. सो व्हाट विल हैपन? लैम्बडा विल चेंज. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नेवर गोइंग टू चेंज and hence the frequency experienced by both the people standing here and here will be different because lambda here is different, lambda here is different. Is it clear? Cool. So now let's say whenever there is a relative motion between a source of a sound and the listener with respect to the medium in which the waves are propagating, the frequency of sound experienced by the listener is different than the original frequency. This is called Doppler effect. Here we will be dealing with three things, three velocities: velocity of source when it will be in motion, velocity of listener when it will be in motion, and velocity of sound. Is it clear? Fine. Okay. Now there is some sign convention that we will be following over here, and this is a convention. I am sure that you know what is the meaning of a convention. Fine. वो चलता आ रहा है इसीलिए वो convention है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So we have got sign convention. कोई भी velocity listener से source की तरफ की direction में है, it is always positive. Listener से source की direction में है, it is always positive. अगर listener यहाँ पे है और source यहाँ पे है, velocity ऐसी है, so it's a positive velocity. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Fine. Listener से source की तरफ जाने वाली हर एक velocity is the positive velocity. You're not giving concentration over here. ध्यान. कहां से नहीं था वहां से पढ़ा था वापस. समझ गया? ग्रेट. सो लिसनर से सोर्स तक का जो भी वेलोसिटी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. आना अंदर कस. तू थोड़ा अंदर जा. हाँ. सो लिसनर से सोर्स तक का जो भी वेलोसिटी होता है डोंट अंडरस्टैंड चलो पॉजिटिव एक्सिस. नो. Listener is here, source is here. Fine. Listener to source, it is a positive velocity. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? क्लियर हो रहा है? फाइन. ओके. अब हम ऐसा बोलेंगे सोर्स से अगर लिसनर की तरफ जा रहा है ऑल द वेलोसिटीज विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड v always positive, only positive.
Only positive, always positive. समझ पड़ा? Velocity of sound anywhere is positive. Velocity of sound anywhere it is positive. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? आ गए ना वापस? Yes. Convention. Do you understand what is a convention? What is a convention? Convention का meaning पता है क्या? What is the dictionary meaning of convention? नहीं हिंदी में समझा रहे उसको बोलते हैं रिवाज सासू संसार पल्लू का नीचे आगे जाओ जी रिवाज छे यू कांट हेल्प इट डू यू अंडरस्टैंड पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है ओके चलो सो साइन कन्वेंशन कन्वेंशन डू यू अंडरस्टैंड पेढीगत जे चालतो આવ્યું છે that is a convention in my family that is what we say खबर पड़ी कि ना खबर पड़ी क्लियर થાય છે દીકરા fine so there is no logic behind it there is but right now it is a convention for us fine okay echo you meant I'm sorry allergic message है એટલે થોડી effect आई ગઈ મારા ignored your question is ignored chal so now let's deal with source is stationary vs is equal to 0 source is stationary vs is equal to 0 we will be addressing that question in one of the illustrations that we have so source is stationary that means vs is equal to 0 vl is moving in this direction and source is stationary it has no velocity but whatever the sound it is going to generate obviously it is going to have some velocity that is velocity of sound and velocity of sound anywhere is considered as positive number done पता चला कि नहीं पता चला क्लियर हो रहा है कोई डाउट इसके अंदर कोई डाउट ग्रेट नीचे डाउट थैंक यू सो वेरी मच ओके fs is called as frequency generated by the source यहाँ पे ये है ना वेव ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली उसका एक क्रेस्ट होगा ट्रफ होगा सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स दैट बिकम्स माय लैम्बडा वेवलेंथ व्हिच इज जनरेटेड बाय द सोर्स इटसेल्फ समझ पड़ा यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी एक्चुअली ये लैम्बडा ही है ये लैम्बडा समझ पड़ा लैम्बडा ये ज्यादा दिख रहा है बट इट्स लैम्बडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया फाइन frequency generated by the source that is fs now as listener is always in motion I'm sorry the listener now as listener is also in motion thank you the relative velocity of wave felt by the listener will be more as sound wave and listener are traveling towards each other अगर एक 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है और तू भी 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है तू भी 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है तो तेरे को रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया फाइन एक 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है दूसरा 10 की स्पीड से ऐसे आ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो गया तुझे सामने वाले का वेलोसिटी डबल दिखेगा आ गया तू वापस कहां से समझाऊं बोल ध्यान आप चल I was explaining that as both the listener and sound wave both are traveling towards each other એટલે આના કમ્પેરિઝન માં આ જે વેલોસિટી છે એને તો આ સપોઝ vl છે અને આ v છે fine so listener will feel the velocity as vl plus v can you understand if not then tell me no you are not able to understand it no then tell me no it's okay કોને ના ખબર પડી okay no who has not understood one then anybody everyone got it you got it सबको पता चला बेटा साउंड अगर 10 की स्पीड से हम ऐसे जा रहे हैं और 10 की स्पीड से कोई एक चीज ऐसी आ रही है तो मुझे सामने वाले का स्पीड 20 दिखेगा कि नहीं दिखेगा 10 + 10 फाइन अगर मैं 5 से हूं वो 10 से तो मुझे 15 दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये VL है ये V है सो VL + V दिखेगा कि नहीं दिखेगा लिसनर को फाइन सो एज अ लिसनर I will feel the velocity of sound wave don't get confused right now over here to listen to this and see this so what will happen the velocity that the listener is feeling
is given by, I mean that listener is finding that velocity to be v plus vs, v plus vl. इतना velocity हुआ कि नहीं हुआ? Now I know v is equal to f lambda. So v is equal to f lambda. Fine. पता चला कि नहीं पता चला? Right? Lambda we know this is lambda, and this is the frequency heard by. This is the frequency heard by the listener. Fine. So I can say that FL is equal to v plus vl divided by lambda. Otherwise lambda is equal to v plus vl divided by fl. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? I've got my lambda. Clear? जो लैम्बडा, ये कौन सा लैम्बडा है? ये लैम्बडा कौन है? जो vl को सुनाई देने वाला है वो। जो ये लैम्बडा कौन सा है? जो vl को सुनाई देने वाला है वो लैम्बडा है। क्लियर? सो मुझे जो सुनाई देगा वो साउंड वेव आएगा, उसी तरह से मुझे सुनाई देने वाला है। सो राइट नाउ एज सोर्स इज नॉट मूविंग, जो ओरिजिनल लैम्बडा है वही ओरिजिनल लैम्बडा मुझे सुनाई देने वाला है। फाइन, ओके? ओरिजिनल नहीं, आई एम सॉरी, चेंज्ड है, पर लैम्बडा इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर। फाइन, v प्लस v हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी मेरा चेंज हो गया। जो भी मुझे सुनना है फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फ्रीक्वेंसी गॉट चेंज्ड, मुझे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। क्लियर हो रहा है? लैम्बडा इज दिस मच ओनली। डन? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है इतना? डन? फाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं, आमने सामने मस्त आ रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। जो भी हमें सुनाई देगा वो पता चला वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जो भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके। सो वी हैव गॉट फर्स्ट थिंग क्लियर, FL is equal to v plus VL divided by lambda। और एक चीज रह गई, lambda is equal to lambda। यहाँ पे lambda जो है, lambda, this lambda is given by v divided by fs, v divided by fs। पता चला सोर्स ने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, v is equal to f lambda। लैम्बडा जनरेट किया है सोर्स ने, बराबर, उसका कोई एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी है, ध्यान, उसका कोई सोर्स का एक फ्रीक्वेंसी भी है। फाइन, सो v जो वेलोसिटी निकल रहा है which is equal to f lambda, तो दिस इज फॉर सोर्स। Now for listener when we are talking, so we have got FL into lambda which is equal to the velocity which we are having, which is a relative velocity। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? अभी मैं सिर्फ सोर्स की बात कर रहा हूँ, ओनली सोर्स। फाइन, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्स एंड लिसनर टुगेदर। तो लिसनर को क्या फील होगा? लिसनर जा रहा है, साउंड आ रहा है, तो वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। So we have got lambda which is equal to v plus vl divided by fl। So listener का frequency हमें यहाँ पे मिल गया। listener का frequency क्या हो गया? fl which is equal to v plus vl divided by lambda, and lambda I can calculate from here, v divided by fs if you have been given the value of fs। clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है? fine, confusion नहीं है ना तो बोल दो, confusion हो रहा है तो बोल दो मुझे। ये clear हुआ कैसे आया? सोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स ने कुछ तो v वेलोसिटी का साउंड वेव जनरेट किया। फाइन, और सोर्स ने जो जनरेट किया है वेव, उसका कुछ तो लैम्बडा था। फाइन, सो v is equal to f lambda पर से lambda is equal to v divided by fs मुझे मिल गया। We are talking about source, we are talking about source, we are talking about source right now, we are talking about source right now। क्लियर हो रहा है सबको? फाइन, अच्छा, now I am talking कि जब वो लिसनर के पास जा रहा है, लिसनर भी उसकी towards, you know, listener is also coming towards that sound wave, है, सोर्स के towards आ रहा है वो। सो लिसनर से सोर्स, सब वेलोसिटी पॉजिटिव लेने का, वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिया मैंने। फाइन, पता चला कैसे वो आया लॉजिक, एंड दैट्स व्हाई वी मेड अ कन्वेंशन। दिस इज द थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड। फाइन, ओके, कि दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो ऑलवेज इट इज गोइंग टू गेट एडेड। क्लियर? फाइन, सो वी हैव गॉट v plus vl ओवर हियर। फाइन, अगर ये आगे जा रहा है, इट इज गोइंग अवे, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम v minus vl। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह, क्लियर हो रहा है ये चीज? अगर वो अवे जा रहा है मतलब क्या हो गया? दोनों एक ही डायरेक्शन में गए, सो डिफरेंस जो होगा वही रिलेटिव वेलोसिटी विल बी देयर। ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 5 का हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा बेटा, आई नो आज बहुत पढ़ के आए हो। फाइन, चलो, समझ पड़ा? ओके, ये इक्वेशन में कोई किसी को भी डाउट, ऐसा आप बोलो कि सर पता नहीं डाउट क्या है पर नहीं समझ पड़ा, यू कैन टेल मी दैट। पढ़ा बेटा, समझ पड़ा? तुझे पता चला बेटा? सबको क्लियर?
डन 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 है, बधाने क्लियर। Cool. So now we understood that lambda is equal to this, FL is equal to this. Now source is also into motion. अब source भी motion में आ गया. अब क्या होगा? तो as source is moving in the direction from source इस direction में move कर रहा है, बराबर? Source is moving in this direction. That's why that velocity will become positive according to the convention. Listener to source की direction में it is moving, so velocity is positive vs. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Velocity is positive vs. Done? पक्का डन? फाइन. ये होने के बाद हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, पता चल रहा है ना? Okay. So source is at O at t is equal to 0 and at t is equal to capital T it is at O dash. मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे वो अभी है, exactly एक टाइम पीरियड खत्म हो जाता है. exactly एक टाइम पीरियड मतलब क्या? यहाँ पे पहला वेव जनरेट हुआ और दूसरा वेव जनरेट हुआ, उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो वन टाइम पीरियड जितना होगा कि नहीं होगा? जो टाइम व्हाट आई हैव इन बिटवीन टू वेव्स विल बी वन टाइम पीरियड. यस और नो? फाइन. सो आई कैन से दैट इन वन टाइम पीरियड कैपिटल T is equal to 1 upon fs. सोर्स का ही है फ्रीक्वेंसी, वो टाइम पीरियड भी सोर्स की वेव का ही है. टाइम टेकन बाय अ वेव टू गेट जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स. एग्जैक्टली आफ्टर वन टाइम पीरियड बगा सका के सोर्स नया वेव फॉर्म डेवलप करता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चल रहा है? फाइन. मैंने अपना प्रॉमिस निभाया अभी. फाइन. चल. सो वी कैन से दैट कि नो चीट्स टुडे. इन वन टाइम पीरियड कैपिटल T डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोर्स इज इक्वल टू, एक टाइम पीरियड में सोर्स कितना ट्रैवल कर रहा है, इतना गया वो. भाई साउंड वेव का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, 330 मीटर्स पर सेकेंड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बगा सा खा के. क्लियर? फाइन. ओके. तो उतना स्पीड में तो कोई नहीं दौड़ने वाला. समझे कि नहीं समझे? 3 सेकंड में किलोमीटर कवर हो जाता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ऐसा नहीं पॉसिबल है अपने लिए. डन. 3 सेकंड में यू कैन नॉट कवर अ किलोमीटर. फाइन. एरोप्लेन भी नहीं जा सकता उस स्पीड से. तो आई होप यू नो दैट. हाँ. फाइन. कौन सा प्लेन जाता है? कौन सा? हाँ, यानी मुझे वो नाम नहीं पता था. कॉन्कर्ड वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में जाता है. फाइन. और जब वो साउंड का बैरियर तोड़ता है तो बहुत जोरदार आवाज आता है. फाइन. राइट. Anyways, so we are not talking about those things right now. We are talking about something which is having a lesser velocity than sound's velocity. Fine. नहीं बेटा, ऐसा नहीं करने का. बेंचेस लिखने के लिए थोड़ी होती है, रीटे बांटने के लिए होती है. पर तूने ट्राई तो किया ना. That again proves. अब तो रिकॉर्डिंग में भी आ गया. ऐसा करना चाहिए. अपने कैसे होते नहीं, अपने को पता है अपने को ऐसा नहीं करना है, फिर भी अपने वही करते. जबरे इंटेलिजेंट अपने लोग हैं. Don't do that. Don't do that. किसी को भी नहीं करना चाहिए. Fine? अपने वो नाने छोटे छोटे वो बालवाड़ी थोड़ी है. ये चीज है. Distance travel. Okay. So in one time period, the distance traveled by, ध्यान. In one time period, distance traveled by source is O dash, which is equal to source का velocity multiplied by total time. तो एक टाइम पीरियड जितना टाइम हुआ कि नहीं हुआ, सो वी गॉट vs इनटू कैपिटल T. इसमें किसी को डाउट? सर कैपिटल T ही क्यों आया? किसी को डाउट? पता चला ये कि नहीं चला? अला डन. समझ पड़ा? समझ पड़ा? ओके. सो नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव इन टाइम कैपिटल T, this much distance is this distance, या तो दिस डिस्टेंस लैम्डा जितना डिस्टेंस. पता चला कितना? ये O से B तक, O से A तक is the distance what I have over here. ये इतना लैम्डा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मिया लो. ये लैम्डा, ये भी लैम्डा. समझ पड़ा? अगर वे स्टेशनरी है तो ऐसा वेव जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा ये चीज? फाइन. अगर वो स्टेशनरी है तो ऐसा वेव और ऐसा वेव जनरेट हो गया. फाइन. पर अभी क्या हुआ, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है.
तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे रेरफ्रेक्शन होगा। मैंने अभी बोला था आप लोगों को, यस और नो। डन। अल्लाह पता चल रहा है सबको कि ऊपर से जा रहा है ना? आज सिंसियर हूं तो मुझे ऐसा लगता है आपको पता ही नहीं चल रहा है ना? समझ पड़ रहा है ना? ग्रेट, डोंट डू दैट। सो वी कैन से दैट ओके। सो अब हो क्या रहा है यहाँ पे गया वो, तो अभी आखा वेव जनरेट होने के लिए टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी। तो सोच यहां से अगर मैं वेव जनरेट कर रहा हूं तो ये वेव जनरेट हुआ ऐसे, फाइन, बराबर, ऐसे वेव जनरेट हो गया। पर अगर मैं जनरेट करते करते दौड़ रहा हूं तो यहाँ पे तो वो लंबा हो गया कि नहीं हो गया? द वे वी कैन सी इट ओवर हियर। डन, फाइन। सो आई कैन, अच्छा, और मुझे अभी काम किसका? इसका काम नहीं है क्योंकि मेरा लिसनर यहाँ पे है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So I can say that towards the listener at t is equal to capital T, source is at O dash. So distance towards the listener is O dash B. O dash B जितना distance हो गया, and O dash B is what? यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का distance बगा सा खा के, so I can say that and away from it is O dash A. Away from listener is O dash A. Towards the listener, lambda जो मेरा पूरा बना, it is what? BO OB plus O dash O O dash। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? दोनों उल्टे बोला, ये समझ पड़ा? ये क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ बेटा? देख रहे हो, आपको पता चलना चाहिए ना। देखो OB plus OO dash, that is the entire lambda that I have got over here, fine। So that is equal to V into T। V into T कैसे आया? That is the distance traveled by sound, fine, in one time period, क्योंकि साउंड जा रहा है ना ये, राइट? साउंड का वेलोसिटी कितना है? v। डन। सो v इनटू वन टाइम पीरियड में इतना ट्रैवल हुआ। वन टाइम पीरियड में इसने छोटा सा ट्रैवल किया क्योंकि 330 मीटर्स पर सेकंड जा रहा है, वो 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? समझ पड़ रहा है ये? सो इसने vs इनटू t जितना ट्रैवल किया, बराबर? अल्लाह समझ पड़ रहा है ये? ओके। सो आई कैन से दैट लैम्बडा इज इक्वल टू vt plus vs into t। सो लैम्बडा इज इक्वल टू v plus vs into t। सो वी कैन से दैट it is equal to v plus vs and t is equal to 1 upon fs, so it is divided by fs, lambda is equal to this, बराबर? अब ये लैम्बडा सोर्स वाला लैम्बडा मैंने बोल दिया, सोर्स वाला लैम्बडा बोल दिया मैंने। अब लिसनर को क्या पंचायत साला वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये दौड़ रहा है, ये नहीं दौड़ रहा है, ये कुछ भी, लिसनर को पंचायत नहीं पंचायत। अंधा है तो उसको दिख नहीं रहा है कोई दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है। समझ पड़ा? वो तो सिर्फ सुन ही सकता है ना, राइट? तो लिसनर के लिए तो यहाँ पे भी वही चीज था ना, वेवफॉर्म का जो वेलोसिटी आ रहा है उसके साथ उसको लेना देना है, फाइन, पता चला? सो उसका जो भी लैम्बडा होगा इट इज v plus vl divided by fl only। समझ पड़ रहा है या नहीं समझ पड़ रहा है? उसको तो क्या दिखेगा? ये दिख रहा है यहाँ पे v वेलोसिटी से ये चीज उसके पास आ रही है। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? राइट? v वेलोसिटी से ये चीज उसके पास आ रही है, उसको क्या दिखेगा? v plus vl, क्योंकि v ऐसे आ रहा है, vl ऐसे जा रहा है, राइट? तो v plus vl divided by fl। समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? लिसनर को सुनाई देने वाला फ्रीक्वेंसी। डन? बड़ा मनी बेटा। सो वी कैन से दैट हियर द लैम्बडा इज रिप्लेस्ड बाय v plus vl divided by fl। ध्यान। सो विल बी हैविंग v plus vl divided by fl is equal to v plus vs divided by fs। v plus vs divided by fs। अभी मैं बुढ़ा हो गया ना तो इतने फास्ट बोला नहीं जाता मेरे से। So v plus vl upon fl is equal to v plus vs upon fs। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? किसी को कोई भी डाउट हुआ? कोई भी नहीं ना? समझ सब कुछ पड़ा ना? डन? पक्का ना? लिखो, आप पॉज दो।